Hello everyone, today we are going to complete exercises of chapter number 4, Trapped from workbook. Read the poem and answer the questions. यहाँ पर आपको एक पोएम दी है और उसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. So let's start. Comprehension A. Mark the sentences as true or false. First, according to the poet, the grasshopper is a funny creature. True. Second, the grasshopper loves to go in the meadow. True. Third, he is watched over by the snakes that live nearby. False. Fourth, when he trips in the summer, he appears to be calling the children to come out to play. True. Then B, answer the questions. First question, what does the grasshopper wear? He wears bright, light trousers and a jacket and cap. Second, where does the grasshopper play? He plays in the meadow. Third, which season is the fun time for the grasshopper? And answer, summer is the fun time for the grasshopper. Then fourth, where does the grasshopper live? He lives in a quaint little house under the hedge. Fifth, many people are afraid of insects and they try to kill them. Is it right? No, it is not right. Are all insects dangerous to humans? No, not at all. Insects are dangerous to humans. कुछ dangerous होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. Correct? 6. List two pairs of rhyming words from the poem. Chap, cap, go, low, fair, where. Sun, turn, no, low, house, mouse. Then vocabulary, collocation. Collocations is a group of particular word का एक particular group, ठीक है, जिसमें क्या होता है that are used together very frequently. हम लोग frequently उन दोनों word को साथ में यूज़ करते हैं. जैसे देखो यहाँ पे है एग्जाम्पल दिया है, make a difference, to change a situation, play a part, to be involved in something. इन्हें कहते हैं collocation, ठीक है. Then A. Choose the most suitable verb from the box to fill in each blank. Some verbs may be used more than once. One has been done for you. First, I am going to take a bath. Take a bath. है ना collocation. Then देखो. Did Ritu pass or fail the test? Third, can you give the dirty pup a bath? Fourth, the boy is too young to tell the time. Fifth, the driver has gone to the park to take a nap. Sixth, Sahil really does not know how to crack a joke. 7. Then seventh, please do me a favor and get some milk. 8. Please keep an eye on my pet while I am inside. 9. The woman told the taxi driver to keep the change. 10. I think you made a mistake while counting the money. The next exercise, complete the following words and add as many words as possible to the verb in the middle to form collocation. Refer to a dictionary. अभी देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, दो लड़कियाँ खड़ी है, करेक्ट. यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बीच में एक वर्ड दिया है मेक. कैसे हुआ अभी, मेक फ्रेंड्स. ऐसे हम लोग और क्या कर सकते हैं, मेक अरेंजमेंट्स, मेक अ डिफरेंस, मेक अ चॉइस, देन मेक अ वे. देन नेक्स्ट पिक्चर देखो, इसमें क्या है, एक लड़की है जिसके मुंह में थर्मामीटर है, मतलब वो बीमार है. यहाँ पर बीच में एक वर्ड दिया है हैव, ठीक है. हैव अ बाथ, have a nice day, have a break, have a good time, have fun. आप यहाँ पर कोई भी वर्ड्स लिख सकते हो. Then catch a fish, catch a ball, catch a thief, catch a cold or catch fever, catch a bus. Then grammar section, यहाँ पर
देखिए आप लोगों को क्या दिया है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के डिग्रीज दिए हैं। एडजेक्टिव्स हैव 3 फॉर्म्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, तो पहला फॉर्म है पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, द पॉजिटिव फॉर्म और डिग्री इज द बेस फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। इट इज़ यूज व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, जहाँ पर हमें कंपैरिजन करनी ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे ये पॉजिटिव फॉर्म रहता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ अ वाइड रोड। ठीक है, या हम लोग बोलें कि राजू इज क्लेवर बॉय। ठीक है, यहाँ पर उसकी किसी के साथ कंपैरिजन की है नहीं है, यहाँ पर रोड को कहा कि रोड कैसा है, वाइड है। ठीक है, सिर्फ रोड के बारे में एक स्टेटमेंट है, उसको कंपेयर नहीं किया है किसी के साथ में। देन सेकंड, कंपैरेटिव फॉर्म। ये कब यूज़ करेंगे हम लोग, देखो इसके नाम में समझ में आता आप लोगों को। कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन करना। तो हम लोग कंपैरिजन कब करते हैं, जब दो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। करेक्ट, जब सो इट इज़ यूज व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। द कंपैरेटिव फॉर्म इज फॉर्म बाय एडिंग ई आर और मोर और लेस टू द एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव फॉर्म। जैसे देखो, हमें पहले एग्जांपल क्या दिया था हम लोगों ने पॉजिटिव फॉर्म का, दिस इज़ अ वाइड रोड। ठीक है, अभी इसे हम लोगों ने देखो कंपैरेटिव में कैसे किया है, दिस रोड इज़ वाइडर दैन द रोड नियर माई होम। देखो यहाँ पर दो रोड की कंपैरिजन की है, दिस रोड और एक रोड कौन सा, जो घर के पास में है। ठीक है, कंपैरिजन की है, इसलिए वाइड को क्या लगा है यहाँ पर, ई आर, वाइडर, और क्या लिखा है, दैन। देन नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, दिस गार्डन इज मोर ब्यूटिफुल दैन द गार्डन आई सॉ इन मैसूर। दो गार्डन की कंपैरिजन है, करेक्ट, और यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है, मोर ब्यूटीफुल। देन नेक्स्ट द सुपरलेटिव फॉर्म। अभी सुपरलेटिव कब करेंगे, कब यूज़ करेंगे हम लोग, इट इज़ यूज व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। दो से ज़्यादा चीज़ें होती है कंपेयर करने के लिए, तब हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव फॉर्म। द सुपरलेटिव फॉर्म इज फॉर्म बाय एडिंग ई एस टी और मोस्ट, लेस टू द एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ द वाइडेस्ट रोड इन द टाउन। पूरे टाउन के जितने भी रोड है उसमें से सिर्फ वो जो रोड है उसको बोला है वाइडेस्ट है। करेक्ट, तो यहाँ पर ढेर सारे रोड थे, उसमें से एक के बारे में हमने कहा, मतलब सब लोगों से कंपैरिजन करके वो स्टेटमेंट दिया है हम लोगों ने। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन आई हैव एवर सीन। जितने भी गार्डन है, सब गार्डन देखने के बाद हमने कहा है कि ये जो है ये कैसा है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ किया है। देन ए, fill in the blanks with the appropriate degree of the adjectives given in the box. One has been done for you. First, the camel is taller than the cow. कौन सी डिग्री है ये, कंपैरेटिव डिग्री। द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द बुक इज ईजी। एक नॉर्मल सेंटेंस है, यह है पॉजिटिव फॉर्म। यहाँ पर कंपैरिजन की है क्या, नहीं की है, पॉजिटिव है। थर्ड, दिस इज द चीपेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन। पूरे टाउन में से चीपेस्ट, तो यहाँ पर क्या हुआ, सुपरलेटिव फॉर्म। फोर्थ, ग्रीनलैंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये भी क्या हुआ, सुपरलेटिव। फिफ्थ, द बेस्ट हैंड राइटिंग इन द क्लास विल विन अ प्राइज, बेस्ट, सुपरलेटिव। देन सिक्स, द स्टोरी बुक इज थिकर दैन द वन आई रीड लास्ट वीक। थिकर का है, ई आर लगाया और दैन भी है, ये हुआ कंपेरेटिव फॉर्म। Then B, rewrite each sentences as instructed. One has been done for you. First sentence, my brother's room is tidier than all the others' room in the house. इसे हमें क्या करना है, सुपरलेटिव में चेंज करना है। ओरिजिनली ये सेंटेंस कौन से फॉर्म में है, कंपैरेटिव में नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो टीडियर दैन लिखा है। अभी इसे करना है हमें सुपरलेटिव में, तो हम कैसे करेंगे, माई ब्रदर्स रूम इज टीडियस इन द हाउस। सेकंड, कैट्स आर नॉट एज क्लेवर एज डॉग्स। इसे हमें करना है कंपैरेटिव में, कैट्स आर लेस क्लेवरर देन डॉग्स। थर्ड, शो मी अ गुड पेट शॉप इन दिस एरिया। इसे क्या करना है हमें, सुपरलेटिव में, शो मी द बेस्ट पेट शॉप इन दिस एरिया। फोर्थ, जमीला इज नॉट एज प्रिटी एज हर सिस्टर। ऐसे कंपैरेटिव में चेंज करना है, जमीला सिस्टर इज प्रीटियर दैन जमीला। फिफ्थ, द टर्टल इज़ द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल। अब इसे क्या करना है, ये एक्चुअली है सुपरलेटिव फॉर्म में, तो इसे हमें करना है पॉजिटिव फॉर्म में।
The turtle is the long living animal. Then next, fill in the blanks with will or going to. One has been done for you. Will and going to refer to an action that will be done sometimes in the future. जो फ्यूचर में होने वाली एक्शन है उसके लिए हम लोग will या फिर going to यूज़ करते हैं. So first one, I will eat pasta for dinner. Second, I think it will rain tomorrow. Third, Kabir is going to turn 12 next year. Fourth, I think it is going to rain heavily tonight. Fifth, Arun will get a new car next month. Sixth, I think my sister will like this red dress. Seventh, Shivjit will hold a meeting next week. 8. Ghazla and I are going to leave at 3 this afternoon.